دوستوں آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا۔ دوستوں آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے، اور جو شخص بھی ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح اس کے تمام بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح اللہ پاک کی بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ اللہ تعالیٰ سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ تسبیح اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آپ کے نصیب کو کھول دیتی ہے، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کا دن موجود ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن کا یہ خاصم خاص عمل ہے، یہ خاصم خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ خاص عمل لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کرتے ہی رب کریم آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو مصلی چھوڑنے سے پہلے فوراً قبول فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی کوئی بھی حاجت کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو دوستوں آج کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے اسے ملتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کامیابی آپ کے گھر کا رخ کر لیتی ہے۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو دوستوں آج کا یہ خاصم خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ بھی آج کا یہ عمل، یہ کام بتائے گئے طریقے سے کر لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، نصیبوں کو اجاگر کر دیں گے، پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے۔ اگر آپ لوگ بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو دوستوں صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستوں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر، خالی جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے۔ یہ اتنا خاص دن ہے، یہ اتنے خاص قبولیت کے لمحات ہیں کہ اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل اتنا تیربا ہدف ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ دوستو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں اور نظر بد، جادو، جنات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آج صرف اتنا یاد رکھنا کہ جس مقصد کے لیے آپ پچھلے سال ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے سامنے
झुकने पर मजबूर हो गए। दिन रात मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद जो साल 2024 में आपकी हाजात पूरी ना हो सकी, आज माह रजब की 28 तारीख बुध के दिन सिर्फ ये 3 काम जरूर कर लेना। पिछले साल में जो भी आपकी ख्वाहिशात थी, जो आप रब्बे करीम से मांग रहे थे, वो जो आपको पिछले साल ना मिल सका, आज ये 3 काम करते ही इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज रब्बे करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अजमत और शान के मुताबिक मांगिएगा। माह रजब मुरज्जब अल्लाह करीम का महीना है, इरशाद खुदाबंदी है, रजब मेरा महीना है, शबानुल मुअज्जम मेरे कबली वाले आका का महीना है, और रमजान पूरी उम्मत का महीना है। आज माह रजब की 28 तारीख है, आखिरी बुध का दिन है, रब्बे करीम से मांगने का दिन है, रब्बे करीम से खजाने लूटने का दिन है। इंशाअल्लाह आज के दिन आप लोग ये खास अमल लाजमी करिएगा, बताए गए तरीके और तरतीब से करिएगा, क्योंकि ये अल्लाह वालों के बताए हुए खास और मुस्तरद अमाल है। आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है। आज माह रजब की 28 तारीख आखिरी बुध के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ सकते हैं। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले आज माह रजब की 28 तारीख है और आखिरी बुध का दिन है। देखें, बुध बहुत सारे आएंगे और बुध हर हफ्ते आते ही हैं, लेकिन ये माह रजब का आखिरी बुध है, यानी अब 1 साल बाद ही आपको बुध का दिन देखने को मिलेगा। तो बेहतर यह है आज के दिन को आप लोगों ने लापरवाही में नहीं गुजारना। आज के दिन आपने अल्लाह पाक को लाजमी राजी करना है। पहले आज माह रजब की 28 तारीख की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी और आप लोगों के मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, अहले बैत के घराने और उनकी कुर्बानियों का वास्ता, तुझे सहाबाए किराम की शुजाअतों का वास्ता। मेरे मौला हम सब की हर नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला हम सब के तमाम मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन करवा दे। हमारी तमाम नजर बद को काट दे, जादू जिन्नात के मामलात को काट दे। मेरे मौला रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा, रिज़्क़ करीम और रिज़्क़ करीम और रिज़्क़ कसीर अता फरमा। जिनके घर में जो रिज़्क़ के मामलात हैं मेरे मौला उनको ख़त्म फरमा दे, बेबरकती का खात्मा फरमा। हमारे रिज़्क़ हलाल में खूब बरकतें वसअतें पैदा फरमा दे। मेरे मौला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा और यही तौफीक हमारी आलो औलाद को भी अता फरमा दे। मेरे मौला ऐसा इज्जत वाला, ऐसा बाबरकत रिज़्क़ और ऐसा ताहिर रिज़्क़ अता फरमा, जिसको हासिल करने के बाद, जिसको खाने के बाद मेरे मौला हम कभी अपने ना वालिदैन के गुस्ताख बने, ना तेरे गुस्ताख बने और ना ही हमसे तेरी नमाजें छूटे। मेरे मौला हमारी ज़बान को इखलाक से पुर फरमा दे। मेरे मौला हमारी ज़बान को इखलाक वाला बना दे, हमारी आंखों को हया अता फरमा दे, हमारे कानों को गालियों से पाक फरमा दे, गाने बाजों से पाक फरमा दे। मेरे मौला रजब की मुकद्दस घड़ियां हैं, इन रजब की आखिरी मुकद्दस घड़ियों का वास्ता हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। मेरे मौला बिलखुसूस मेरे मौला गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों के ऊपर नजर रहमत फरमा, नजर करम फरमा। और जो जंग रुक गई है उस जंग को रोके रख, दोबारा उस जंग को मेरे मौला स्टार्ट न करवाना। इमाम मेहदी को जाहिर फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा दे। मेरे मौला पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान रह रहे हैं, जहां पर भी मुसलमान बस रहे हैं, उन सबको अपनी पनाह अता फरमा। और जहां पर जो भी मुजाहिदीन अभी तक कुफ्फार से बरसरे बेकार हैं, उनके ईमान में, उनके अखलाक में, उनकी शुजाअत में, उनकी बहादुरी में मेरे मौला बेशुमार की बरकत अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार
कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। और अगर ये वीडियो लाखों लोगों तक चली गई तो अल्लाह वालों सोचे किसी एक की भी आमीन कबूल हो गई, हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब के मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। जितनी ज्यादा आमीन होंगी उतना ज्यादा अल्लाह पाक का हम पर करम होगा, हम पर रहम होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी जरूर लिखना है। हो सके तो अपने मामलात के लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज जवाब देने की और रूहानी इलाज करने की पूरी कोशिश फरमाऊंगा। आज माह रजब की 28 तारीख है और बुध का दिन है। इस बुध को दौलत वाला बुध भी कहा जाता है। आप लोगों के पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जब आपका दिल करे आप इस अमल को कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। यानी आप लोग किसी भी जगह पर दुकान, दफ्तर, कारोबार चलते फिरते भी इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है? आप लोग बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं, बावजू हो जाए, मुसल्ले पर बैठे और आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की वजह से रब की पकड़ में चला जाता है और जब कोई बंदा रब की पकड़ में चला जाए तो अल्लाह वालों उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, उसके कोई मामलात बेहतर नहीं होते। तो बेहतरीन यही है कि सबसे पहले हम लोग इस्तग़फ़ार करें, अपने मामलात को बेहतरीन करवा लें, रब को राजी करवा लें, रब की रहमतों को मुतवज्जो करवा लें। और जब रब की रहमतें मुतवज्जो हो जाती हैं, खुद व खुद आसानियां होना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले इस ख़ाप ने जो है इस्तग़फ़ार करना है। इस्तग़फ़ार कैसे करना है? अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। बहुत सारी दुआएं आती हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करें, आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, अपनी खताओं को याद करें और जो आपने धोखेबाजी करी है, आपने जो भी करा है मखलूक के साथ, आप उसको याद करें और फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू करें। अपने उस गुनाह पे शर्मिंदगी के साथ रब की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें। रब हर चीज़ का जानने वाला है, वो बहुत कुदरतों वाला रब है, समझे? अल्लाह वालों, आप लोग उससे मांगे, उससे माफ़ी मांगे। अपने गुनाहों को किसी और के आगे नहीं बताएं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, मेरे आगे लोग रो रहे होते, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने ये कर दिया। भाई आप मुझे नहीं बताओ, आप अपने रब को बताओ। गुनाह का इकरार करना भी गुनाह है, अपने गुनाह को बताना भी गुनाह है। तो बेहतर यही है कि आप लोग अल्लाह पाक को बताओ कि मेरे मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा सियाकार हूँ। देखें, रब तो मुसब्बिबुल अस्बाब है, अस्बाब बनाएगा। यकीन करें, आपको उस दलदल से निकालेगा, आपकी उस परेशानी को हल फरमाएगा, आपको माफी दिलवाएगा। बस आप लोगों ने सच्चे दिल से उस बारगाह में तौबा करनी है कि मेरे मौला आज के बाद मुझसे ये गलती नहीं होगी। आप लोग पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह एक बार, अस्तग़फ़िरुल्लाह दो बार। नबी पाक 70 बार कमोबेश 70 बार इस्तग़फ़ार करते थे। 70 बार से ज्यादा कितनी बार भी कर लें, 70 बार कम से कम कर लें, उससे ज्यादा 71, 72, 100, 200, 300, 500 जितनी बार आपका दिल करता है इस्तग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा इस्तग़फ़ार करने का। और जब अगर आपको यूं महसूस हो आपका दिल हल्का बुल्का हो गया है या आपको रोने की तौफीक मिल गई है, तो समझ लीजिएगा आपकी तौबा कबूल हो गई है। आपने इस्तग़फ़ार कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने फौरी तौर पर सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई किराए के मकान पर रहता है और कोई ऐसा है जो किराए के मकानों पर दर दर की ठोकरें भी खा रहा है। अब आपकी जो भी हाजत है, आपका जो भी मकसद है, आपने उस मकसद की नियत करनी है। रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, शर्माने वाली बात नहीं है। पसंद की शादी करना चाहते हैं, रब को बताएं। अपने हर मामलात को आप रब को बताएं, किसी और को ना बताएं। दोस्तों को बताएंगे, मजाक उड़ाएंगे। आप लोग रब को बनाएं, रब को दोस्त बना लें। रब को हर बात बताएं, मेरे मौला ये हो गया, मेरे मौला बात नहीं बन रही है, मेरे मौला मैं हलाल तरीके से शादी करना चाहता हूँ, मेरे मौला मेरे लिए आसानी फरमा, हराम के रास्ते मुझ पर बंद फरमा दे। इस तरीके से रब से मांगे।
अल्लाह वालों यकीन करे जवाब देता है रब। इंशाअल्लाह आज सुनाई नहीं दे रहा, कल सुनाई देगा, कल नहीं तो परसों सुनाई देगा, सुनाई जरूर देगा। क्योंकि रब हमारी जो रब की रहमतें हैं ना बड़ी शानदार हैं। जो रब है बड़ा शानदार है। जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। तो आज माह रजब की वैसे भी 28 तारीख है और आखिरी बुध का दिन है। एक दो दिन बचे हैं, या तो कल चांद नजर आ जाएगा वरना परसों माह शाबान का नजर आ जाएगा चांद। वो महीना ही बहुत कबूलियत वाला है, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ अपनी हर वीडियो में हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए। जैसे वजीफे आपको इस चैनल पे मिलते हैं कहीं नहीं मिलेंगे। बेहतर यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और सब्सक्राइब करना तो फ्री है, अल्लाह वालों सब्सक्राइब कर दिया करें। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। दोस्तों ताउस और तस्मीहा पढ़ने से यानी कि जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। ताउस तस्मीहा पढ़ने के बाद अब आपने यूं महसूस करना है जैसे कि इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर तरीन वजीफा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुबारक नामों के वजीफे हैं। ये अल्लाह पाक का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह कभी किसी को मोहताज नहीं रहने देता। अगर आप रिस्क की तंगी से, गुर्बत से, फक्र फाका से, मोहताजगी से बचना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है वो आपने अल्लाह करीम का एक सिफाती नाम है या कहारू। या कहारू को पढ़ना है। या कहारू अल्लाह पाक का वो सिफाती नाम है जो रिस्क की बंदिशों को, औलाद की बंदिशों को, नजर बद को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। आज अक्सर जिनके कारोबार बंद हो जाते हैं, जिनकी नौकरियां छूट जाती हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात की वजह से उनको बेऔलादी भी हो रही है, बेरोजगारी भी हो रही है। आज का दुश्मन दोस्तों हमें गोली से नहीं मारता, आज का दुश्मन आपको जादू जिन्नात से मार रहा है, आपके रिस्क में बंदिशें लगा रहा है। आपका दुश्मन गोली से नहीं मर रहा, आज का दुश्मन हमारी औलादों को नशों में लगा रहा है। नशा हमारी नस्लों को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। तो दोस्तों बेहतर यही है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत भी करें और मोहतात भी रहना सीखें। इसलिए आज अल्लाह पाक को या कहारू से पुकारेंगे। और जब अल्लाह पाक को या कहारू और या जब्बारू, यानी कि अल्लाह पाक का एक और सिफाती नाम है या जब्बारू, जब अल्लाह पाक को इन दो नामों से पुकारा जाता है तो रब की जलालत भी बढ़ जाती है और इस वजीफे की तासीर और ताकत भी पहले से कई ज्यादा बढ़ जाती है। यानी आज माह रजब की 28 तारीख आखिरी बुध के दिन आपने पहले नंबर पर या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू को 11 बार पढ़ना है। 11 बार या कहारू या जब्बारू को पढ़ने के बाद फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, दूसरे नंबर पर जो अमल करना है वो अमल या रब्बना है, यानी या रब्बना को पढ़ना है। या रब्बना का मतलब है ए मेरे रब। दोस्तों जब आप लोग अल्लाह को या रब्बना से पुकारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा, आपके रस्तों की रुकावटों को हटा देगा, नसीबों को उजागर फरमा देगा, तकदीर के बंतालों को खोल देगा। आपने या रब्बना को पढ़ना है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, आज तक हमें सिर्फ बताया जाता है कि अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ ये वजीफा पढ़ लो या फिर वो वजीफा पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो काम तब तक होता नहीं जब तक हम अल्लाह से मांगते नहीं, जब तक हम अल्लाह को राजी नहीं कर लेते। और हमें तो अल्लाह को राजी करने का तरीका ही नहीं बताया जाता। अगर आप लोगों को इस तरीके के कोई वज़ाइफ मिलते हैं तो अल्लाह वालों उनको फॉलो नहीं करा करें। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको वो तरीकों का पता चल सके जिन तरीकों से अल्लाह वाले मांगते थे, जिन तरीके से नबी मांगते थे, जिन तरीके से मेरे अल्लाह वाले मांगते थे। तो सोचें अल्लाह वालों, सहाबा किराम के बताए हुए अमाल भी आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ, नबी पाक के वजीफे भी लेकर हाजिर होता हूँ। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज माह रजब की 28 तारीख है और बुध का दिन है।
آپ لوگوں نے یہ وظیفے لازمی پڑھنے ہیں. جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا. جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس دکان پر گھاگوں کا رش لگ جائے گا. جس کاروبار میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا کاروبار ٹھپ کبھی نہیں ہوگا. وہ ٹھپ ہوا کاروبار بھی انشاءاللہ چل پڑے گا. بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے انشاءاللہ بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے. اللہ والوں، ایک بار اس وظیفے کو کر کے تو دیکھو. جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے آپ کا مقصد جلد کامیاب ہو جائے گا. آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کامالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے. بس آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے یا ربنا کو آپ لوگوں نے صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے. اللہ والوں، جب کوئی بندہ اللہ پاک کو پکارتا ہے، دیکھیں پڑھے محبت سے، ایسے نہیں یا ربنا یار، ایسے نہیں، دیکھیں محبت سے پکارنا ہے. دیکھیں پکارنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. آپ کسی کو اگر نام سے پکاریں کہ فلاں ادھر آ جا، یعنی کہ عبداللہ ادھر آؤ، اب وہ عبداللہ میں وہ چس نہیں آئے گی. اب اس طرح کہیں گے بیٹا عبداللہ ادھر آئے، تو پھر وہ جلدی سے آئے گا، محبت سے آئے گا. اسی طریقے سے رب ہے، یا ربنا کہیں گے اللہ والوں فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یا ربنا یا ربنا یا ربنا اس طریقے سے آپ لوگ کہیں گے نا، آپ اللہ پاک کو محبت کے ساتھ پکار رہے ہیں. آپ کو خود محسوس ہوگا آپ لوگوں کے منہ سے محبت نکل رہی ہے. اور جب محبت سے پکارا جاتا ہے تو یقین کرے رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں. رب کی رحمتیں نور برساتی ہیں، رحمت برساتی ہیں. اس گھر میں اللہ پاک کا نزول ہوتا ہے. جس گھر میں اللہ پاک کو محبت سے پکارا جائے، محبت سے قرآن کی تلاوت کی جائے. ایسا نہیں کہ آپ نے جو پہلے نمبر پہ یا قہارو یا جبارو پڑھا وہ محبت سے نہیں پڑھنا. محبت کے ساتھ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، اس طریقے سے دیکھیں محبت سے پکارے، وہ رب ضرور سنے گا. اور اللہ پاک یقین کرے دل کے حالوں کو بہتر جانتا ہے. ایسا نہیں کہ منہ سے محبت سے پکار رہے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ یار جلدی جانا ہے. دل کو اپنی اس جلد بازی سے پاک کر لیں. جب بھی میں کہتا ہوں بالکل فارغ ہو جائیں اپنے معاملات سے، اس کے بعد وظیفہ کرنے بیٹھیں. یعنی کوئی جلد بازی نہ ہو، کوئی آپ کو پکارے نہ، کوئی آپ کو ڈھونڈے نہ، موبائلوں کو بھی دور رکھ دیں، کوئی آپ کو فون میسج بھی نہ کر سکے، اور تنہائی میں بیٹھ کے رب سے مانگیں. پھر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے اور رب کتنی جلدی سنتا ہے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے وہ وظیفے لے کر آؤں جو چھوٹے بھی ہوں، یعنی کہ کم پڑھے جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو مزہ آ جائے پڑھنے میں. تو آپ لوگوں نے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ یا قہارو یا جبارو. پھر آپ نے یا ربنا کو 41 بار پڑھنا ہے. جب یا ربنا پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے. وہ وظیفہ ایسا ہے جو عرش الہی پہ لکھا ہوا ہے، یعنی عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح ہے. اور آپ لوگوں نے 12 روایتوں میں پڑھا ہوگا، 12 علماء کرام کی محفلوں میں بھی پڑھا ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایک ایسی پائیدار تسبیح ہے، ایک ایسی خاص تسبیح ہے جو فرشتوں کا ذکر ہے. یہ آسمان پہ یعنی عرش معلی پہ لکھی ہوئی ہے. تو اللہ والوں، آپ نے تیسرے نمبر پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اب 33 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لی. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، توجہ، دھیان، خلوص نیت اور حصول برکت، یہ تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کا دار و مدار ہی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے آخر میں یا رزاقو یا غنیو. دیکھیں یا رزاقو یا غنیو پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا رزاقو یا غنیو کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمیں روزی دینے والے. اور دیکھیں روزی ایک طرح کی نہیں ہوتی، روزی بہت طریقے کی ہوتی ہے، رزق بہت طریقے کا ہوتا ہے. اولاد کو بھی رزق کہا جاتا ہے، مکان کو بھی رزق کہا جاتا ہے، بائک، گاڑی، اس طریقے کے جو بھی معاملات ہیں، اور آپ کا جو کاروبار ہے، آپ کی جو روزی ہے، سب کو رزق کہا جاتا ہے. اور یا غنیوں کا مطلب ہوتا ہے اے غنی کرنے والے. غنی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. اور جو غنی ہوتا ہے وہ امیر نہیں ہوتا، اور جو امیر ہوتا ہے وہ غنی نہیں ہوتا. یہ اللہ والے فرماتے ہیں. اور دیکھیں حضرت عثمان غنی کو اگر دیکھا جائے تو وہ غنی تھے،
मतलब पैसा भी बहुत था, लेकिन पैसा जब आता था अल्लाह की राह में दे देते थे। इसी तरीके से आपने भी बनना है। आपको पास पैसा आएगा, अल्लाह पाक की राह में भी खर्च करना है, अपने बहन भाइयों को भी देना है, अपने वालिदा को भी देना है, अल्लाह की राह में भी देना है, और फिर अपने घर में भी खर्च करना है। इंशाअल्लाह ये हाथ सबको देने वाले होंगे और आपको अल्लाह पाक कभी भी महरूम नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपने मतलब आपने 10% अल्लाह के लिए रख लिया है, 5% अल्लाह के लिए रख लिया, 3% अपनी वालिदा के लिए रख लें, 2% अपने बहनों के लिए रख लें, और 2% अपने भाई के लिए रख लें, और 5% अपनी बेगम के लिए रख लें। इस तरीके से आप अपनी सैलरी को डिवाइड करके देखें, फिर देखिएगा अल्लाह पाक का फजल, अल्लाह पाक का करम किस तरीके से गुजरेगा, क्योंकि आपने अपनी सैलरी में इन सबको जोड़ लिया, इन सबके नसीब को अपने साथ जोड़ लिया। फिर देखें रब किस तरीके से आपको बेहतरीन करके अता करता है। अल्लाह वालों इस तरीके से करके देखें, क्योंकि ये अल्लाह वालों के सहाबा किराम के तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम आप लोगों ने या रज़ाक़ु या गनियों किस तरीके से पढ़ना है, या रज़ाक़ु या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रज़ाक़ु या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या रज़ाक़ु या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रज़ाक़ु या गनियों को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। एक मुकम्मल तस्बीह यानी 100 बार आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। ये आपका अमल हो गया। आज माह रजब की 28 तारीख है और आखिरी बुध का दिन है। आज का दिन बहुत खास दिन है। आप लोगों ने लाजमी इस वजीफे को करना है। जब आप लोग इस अमल को कर ले, पानी का गिलास अपने सामने रखिएगा, उस पानी में दम कर लीजिएगा और उस पानी को पी जाइएगा। और कोई छोटा मोटा सदका आप लोगों ने लाजमी करना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी कोशिश करेंगे 3-3 बार 7-7 बार लाजमी पढ़ लें। जितना ज्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, वजीफा अच्छा पढ़ते हैं, सब बेहतरीन करते हैं, जब मांगने का वक्त आता है तो जल्दबाजी हो जाती है, फिर मांगा नहीं जाता। मांगना भी अदब के दायरे में है। जब मैं दुआ करता हूँ कितनी अदब के दायरे में दुआ करता हूँ। आप अगर देखें, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से दुआ करता हूँ कोई जल्दबाजी नहीं होती, बिल्कुल आराम से। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, इस तरीके से तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शारी करीमी का वास्ता, इस तरीके से मैं दुआ करता हूँ। तो आप भी इस तरीके से दुआ किया करें। अगर आप में तेजी आ जाए तो खामोश हो जाए, 1 मिनट बाद फिर दोबारा मांगना शुरू करें। देखिए तेजी जो आती है ना, ये एक शैतान की फॉर्मेशन होती है। आप लोगों को समझाने बैठूंगा, यकीन करें वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप लोग ये समझ लें कि दुआ अच्छे अंदाज में करनी है, क्योंकि दुआ करने का मतलब होता है मांगना। दुआ एक फरियाद है, एक दस्तक है। तो अल्लाह वालों अगर तेज तेज बोलेंगे अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, तो अल्लाह पाक बोलेंगे भाई अदब भी होती है ना कोई चीज। सबसे ज्यादा अदब वाला कौन है? रबी है ना। हम लोग रब के साथ अदब नहीं करेंगे। किसी प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाए, किसी MNA MPA के पास चले जाए, अदब से MP MNA तो छोड़ें, SHO के पास किसी के पास चले जाए, कितने अदब से बात करेंगे। मेरे भाई ऐसे करके यूं करके बात करेंगे। वो रब है भाई, सबों का बादशाह है, सबसे बड़ा रब है। तो सोचें उसकी बारगाह में हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं जो अदब के ना खिलाफ हो। तो अल्लाह वालों अदब से बात करें। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दोहराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई अल्लाह पाक अपने शान खुदा के साथ माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।